ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਬ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਟ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲਕੁਲੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਣਿਤ ਤੋਂ, ਮੈਥ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਸਫੇਸੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਸਫੇਸੀਆ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਡੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸੰਬੰਧੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਕਾਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਿੱਖੂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਪੀੜਿਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਮ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਰੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ठीक है जी। इस तरह के बच्चे की है थोड़ा जिहा स्लो सीखते हैं, इस स्लो लर्नर दे विच आ जाते हैं, स्लो सीखते हैं, रुक रुक के पढ़ते हैं बच्चे की है, रुक रुक के पढ़ते हैं। इस अगली स्लाइड लेने आप, बच्चे की है रुक रुक के पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आप कर सकते हैं, बच्चे की करते हैं स्लो सीखते हैं, है ना जी। उस तो बाद असीं कर सकते हैं बच्चा रुक रुक के पढ़ता है, ये क्योंकि बच्चे जो पढ़ना ही नहीं आता, उन्होंने अखरां की शब्द की पहचान नहीं आती चंगी तरह, उस तरह की है वो रुक रुक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ना। ठीक है दोस्तों। उस तो बाद असीं गल करांगे, ये बच्चों की पहचान सानू या तो स्टार्टिंग चो ही आ जाएगी, या फिर सानू जाके तीसरी चौथी तक पूरी तरह पहचान आएगी कि ये बच्चा की है लर्निंग डिसऑर्डर नाल ग्रस्त है, क्योंकि बच्चा हजे भी जे चंगी तरह नहीं पढ़ सकता तो वो असीं सोचांगे कि बच्चे नूं की है डिसलैक्सिया है। ठीक है जी। मौखिक इच की होगा, बच्चा पूरी तरह जिहड़ा की है फ्लो हुंदा है उस तरीके विच बच्चा नहीं आ सकता, जिन्हों आप अंग्रेजी च फ्लुएंसी कह दिंदे हां, वो बच्चे का फ्लो नहीं बनता पढ़न दे विच। ठीक है जी। उस तो बाद असीं गल करिए, बच्चा की है मौखिक रीडिंग जिहड़ी हुंदी है बच्चे दी वो नहीं हुंदी, बोध तथा शब्दां नूं जिहड़ा की है सही तरीके नाल नहीं पढ़ सकता। ठीक है जी। ये हुंदा है लर्निंग डिसऑर्डर। किहड़ा हुंदा है लर्निंग डिसऑर्डर? ये डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया दे विच पढ़न संबंधी विकार उत्पन्न होंदे हन। ये थोड़ा जिहा ध्यान नाल रखना, क्योंकि पढ़ना लिखना ये 3-4 डिसऑर्डर ही होंदे हैं जिहड़े कि एग्जाम विच आउंदे है। मोटर एंड स्किल डिसऑर्डर डिसप्रैक्सिया, मोटर एंड स्किल डिसऑर्डर्स डिसप्रैक्सिया, ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। डिसप्रैक्सिया की हुंदा है लिखण अते चित्रण दीआं बीमारियां। डिसप्रैक्सिया लिखण अते चित्रण दीआं बीमारियां। बच्चे नूं की है, बच्चे दा मोटर स्किल्स की हुंदा है, हिंदी च आपां गल करदे हां पेशिया। बच्चे का की है जिवें हत्थ हुंदा है, बच्चे का कहते सब तो पहला की है बच्चे का पूरा हत्थ जिवें पूरा अंग हिलडुल करता है, हौली हौली स्लो तरीके नाल की है छोटे जिहड़े मांसपेशियां हैं, छोटा जिहड़ा मोटर स्किल है वो हौली हौली डिवेलप होंदा है। जिवें पहला बच्चे की बांह हिलन लगती है, फिर गुट हिलन लगता है, उंगलां हौली हौली बच्चा की है उंगलों नूं इस तरह जिवें शेर वांगू आपां करते हैं, शेर वांगू उंगलां करते हैं, उस तरह बच्चा आपदे रूप विच आउंदा है। उस तो पहला की हुंदा है जी, बच्चा पूरी बॉडी नूं हलचल करना सीखता है, पूरे अंग नूं हलचल करना सीखता है, ये मोटर डिवेलपमेंट हुंदा है। ठीक है जी। लिखण संबंधी डिसऑर्डर्स ऑफ राइटिंग, रिटन डिसऑर्डर्स एक्सप्रैशन। ठीक है जी। बच्चा की है ये विच तरह तरह दी बार बार गलतियां करता है, बच्चा की है बार बार गलतियां करता है, काहदे विच? लिखण विच। इहदे विच की है लिखण संबंधी दोष आवेगा, बच्चा की है मोटर डिवेलपमेंट बच्चे का डिसग्राफिया उसनूं आखदे हैं, जिहदे विच की है बच्चा पूरी सही तरीके नाल लिख नहीं सकता। ठीक है जी। दूसरी पहचान होगी की होगी, कक्षा क्लास दे विच आउंदे आउंदे लेखन की हुंदी है बच्चे की अभिव्यक्ति जिहड़ी हुंदी है लेखन वो इन्नी त्रुट हो जाती है कि बच्चा उन्होंने चाह के भी आपदा ठीक नहीं कर सकता। डिसग्राफिया दे विच यह मेन प्रॉब्लम हुंदी है कि बच्चा वो गलतियां नूं अपनियां नूं ठीक नहीं कर सकता। ठीक है जी। यह काफ़ी ही ज़्यादा गंभीर समस्या है बच्चे लई, इसलिए इस नूं दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये बच्चे की स्पैलिंग गलत होगी, बच्चा की है स्पैलिंग गलत करेगा, ग्रामर के तौर पर बच्चा पिछे रह जाएगा, क्योंकि जे लिखण वाला ही बच्चे दे विच सही नहीं आएगा तो बच्चा ग्रामर तो पिछे रह जाएगा, पैराग्राफ लिखण च उहदी त्रुटियां रह जाणगियां। ये सीगा साडा डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया लिखण अते चित्रण दीआं बीमारियां हुंदियां हन। डिसप्रैक्सिया ये काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने जिहड़े भी थोड़े थोड़े अपन करवाए जा रहे हैं, इन्हां नूं ध्यान नाल नोट कर लेना सारियां गल्लां नूं। ठीक है जी। लिखते समय अपने आप नाल गल करना, ये खास पहचान होंगी है। लिखण दे वेले बच्चा की है वो अखर लिखता है, वो सामने होर ही चित्र बनते जाते हैं, जिस तरह की असीं पहले गल कर चुके हाँ, तारे जमीन पर है जी फिल्म है अमीर खान की तुसीं आपां देखी होगी सब ने, वो बहुत ही वड्डा मैसेज दिंदी है। उस विच बच्चे नूं की है अखर टेढ़े मेढ़े होण लग जाए हैं, अपने आप ही बच्चा की है उन्होंने गल्लां करता है, होर ही कहानियां बना लेंदा है। सब तो पहला पॉइंट आ गया अपने आप नाल ही गल्लां करना। गलत शब्द जोड़ अते अनियमित रूप अते शक्ल दे नाल पत्तर लिखना, जदों पढ़न योग होवे तां नकल करन विच वधेरे किरत की वरतों करना। बच्चा की है वो अपने आप ही होर ही ख्यालों च घुम्या रहिंदा है। लिखण वाली समग्री या स्टेशनरी नूं कागज़ के नेड़े रखण ते कमज़ोर पकड़, पढ़न योग लिखत सतरां नूं उपर हेठ अते लियाउणा अते शब्दां अते दे विकार अनियमित थावां छड्डण, अधूरे अखर या शब्द लिखना।
ये देखो सब तो पहला गल आउंदी है कि बच्चा होर ही कुछ करता रहता है, आपकी स्टेशनरी के कागज़ नूं नेड़े रखण दी कमज़ोर पकड़ आ गया। मोटर स्किल्स उहदियां किने पूरी तरह डिवेलप नहीं हुईयां हुंदियां, ये मोटर पकड़ कमज़ोर पकड़ आ गया उहदे विच। पढ़न योग लिखण 17 नूं उपर पढ़न लोग कदे देखो जिस तरह आ लाइनां हुंदियां हन, बच्चे दे अक्षर जां तां उपर चले जांदे हन जां लाइनां तो थल्ले चले जांदे हन। ठीक है जी, इस तरह के डिसऑर्डर की हुंदे हन बच्चे नूं वेखण नूं मिलदे हन। उस तो बाद असीं गल करांगे अगली स्लाइड ते चल के। उस तो बाद डिसकैलकुलिया उस तो बाद साडा है अगला डिसऑर्डर हिसाब के काम के संकेतों समझण विच मुश्किल आउंदी है बच्चे नूं। वो सब तो जनरली पता है, जिवें कैलकुलिया पिछे उस तो आया है कैलकुलिया आया है, इस तो ही पता लग जाता है कि बच्चा की गणित विच कमज़ोर होवेगा। हिसाब दीआं कारवाइयां दे गलत नतीजे प्राप्त करने, गिणन लई उंगलां की वरतों करो, दित्ती योजनावां दा शब्द बजट बनाउण विच मुश्किल हुंदी है, चैकबुक की वरतों विच मुश्किल आउंदी है, दिशा की घाट हुंदी है बच्चे दे विच, बच्चा दिशा की पहचान नहीं कर सकता। ठीक है जी, हिसाब किताब विच गलत करेगा। जिन्ने भी गणित तो संबंधित डिसऑर्डर होणगे बच्चे दे विच वो कित्थे आउणगे जी, डिसकैलकुलिया दे विच आउणगे। ये भी खास इंपोर्टेंट रखता है अपने आप विच। डिसग्राफिया यह एक किस्म का सीखण की अयोग्यता है जो लिखण की योग्यता नूं प्रभावित करती है। इस नूं स्पैलिंग मुश्किल, लिखती माड़ी लिखत अते तुहाडे विचार लिखण विच मुश्किल वजों जाणिया जाता है। ठीक है जी, डिसग्राफिया यह काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रखता है। ये डिसग्राफिया डिसकैलकुलिया जिहड़े 3-4 पॉइंट आए हैं ये काफ़ी बार एग्जाम दे विच आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, डिसग्राफिया डिसकैलकुलिया पहला आपां कीता। डिसलैक्सिया की सीगा, पढ़न संबंधी विकृति सीगी, पढ़न संबंधी विकार सीगा। ये की है हुण बच्चों, लिखण की योग्यता नूं प्रभावित करने वाला। अगली स्लाइड ते चलांगे आपां। डिसफेसिया इस तरह आवेगा इहदे उपर। डिसफेसिया इहदा अर्थ है अपाहजता अते बोलना। डिसफेसिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है बोलण की कमजोरी। ये एक भाषा अते बोलण का विकार है। कम्युनीकेशन बच्चे दे विच की है, कम्युनीकेशन स्किल की घाट होवेगी। बच्चा की है बोलण दे विच की होवेगा, कमज़ोर होवेगा। एक भाषा ते बोलण का विकार है। बच्चे नूं भाषण के दौरान विचार प्रगट करने में मुश्किल आवेगी, उहदे अंदर विचार नहीं बनणगे, वो घबरावेगा बच्चा। इस तरह के दिमाग को नुकसान और अपाहजता लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार मन्निया जाता है। बच्चा जो मानसिक तौर पर परेशान होंदा है तो डिसफेसिया दे नाल ही होंदा है, क्योंकि बच्चा की है अपने विचार लोगों तक नहीं पहुँचा सकता, वो पिछे बैठा दबिया ही रह जाता है, बच्चा दबिया रह जाता है। इस करके डिसफेसिया की है एक कम्युनीकेशन गैप के कारण बच्चे दे विच की है उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वध तो वध बच्चे नूं की क्रियावां करवाइयां जाण, बच्चे नूं की है बोलण लई अगे लिआया जाए। इसलिए ही साडे प्री प्राइमरी नूं स्टार्ट किया गया कि बच्चे नूं स्टार्टिंग दे विच ही गीतां राहीं, कवितावां राहीं, पोइम्स राहीं बच्चे नूं की है ज़्यादा तो ज़्यादा अगे लिआया जाए। बच्चा आपदे आप नूं एक्सप्रैस करे, बच्चा आपदे आप नूं एक्सप्रैस करेगा तो डिसफेसिया नाम की जो कि बीमारी है यह अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, बच्चा की है कहते ये बच्चा मान लो जो 5th क्लास दे विच भी आ गया, लेकिन बच्चे च की है अगे जाके बोलण की कमजोरी रह जाएगी। बच्चा संग दा मारा पिछे ही बैठा रह जाता है। इसलिए की है इसनूं दूर करना बहुत जरूरी है बच्चे के ऑल ओवर डिवेलपमेंट लिए। डिसफेसिया नाम की बीमारी की है कम्युनीकेशन गैप वास्ते है। उस तो बाद है डिसलैक्सिया के लक्षण, ये वही पहली स्लाइड ही आएगी सॉरी। ठीक है जी, ये सन साडे मेन पॉइंट जो कि डिसऑर्डर तो संबंधित सन। इन्हां दे विचों कई बार प्रश्न आए हैं जो कि हर बार एग्जाम विच देखण नूं मिलते हैं। सो इन्हां नूं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है। जे कोई होर पॉइंट बचता तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं। इस तो संबंधित जिन्ने भी क्वेश्चनस बनते हैं वो आपां अगली वीडियो